A very good morning, my dear students. How are you? I just hope you all are happy and healthy. We are continuing the chapter 5. Actually, not continuing. The chapter 5 is almost completed, and today we are going to discuss some questions which are related to chapter 5. The chapter 5 is sensory, attentional and perceptual processes. Our chapter is completed in this previous video, and today we discuss about the questions. So first of all, the NCERT questions. So the topic is question and answers. Okay. So first of all, the NCERT. So NCERT questions में first question is explain the functional limitations of sense organs. So इस section में आपको different kind of sense organs की जो functional limitations है, that's mean our sense organs, our sense modalities not catch, not receive all the informations, all the stimulus which are presented in our environment. We select the information, we select the stimulus and we receive only optimal level stimulus. ठीक है, एक ऐसा stimulus जो एक optimal level की intensity, strength का होता है, हम सिर्फ उसे receive कर पाते हैं, उसी के लिए हम capable हैं. So this is basically known as functional limitation. ठीक है. Next question is what is meant by light and dark adaptation and how do they take place? So definitely in the section of adaptation after the eye structure, eye function, मैंने ये concept explain किया है, जहाँ पे adaptation के concept में dark adaptation and light adaptation explain किया गया है. So basically यहाँ पे आपको photoreceptors which are the rods and the cones and the chemical substance which is known as rhodopsin, उसके बारे में explain करना है. What is the mechanism of rhodopsin, how we adapt to the environment, हम किस तरह से light adaptation और dark adaptation perform करते हैं, दोनों में क्या time gap है, किस तरह से time लगता है. So definitely dark adaptations में ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू लाइट एडेप्टेशन. कौन कौन से पार्ट्स आई के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, व्हाट आर द बेसिक मैकेनिज्म, क्या होल मैकेनिज्म है, वो आपको एक्सप्लेन करना है इन दिस क्वेश्चंस. Now next is what is color vision and what are the dimensions of colors. So color vision क्या है, definitely we perceive color on the basis of sunlight. जो हमारा सन लाइट में कलर स्पेक्ट्रम है, जो 7 कलर्स हैं सन की लाइट में, वो हम एब्जॉर्व करते हैं. हमारी आई के जो फोटोरिसेप्टर्स होते हैं वो उस लाइट में, सन लाइट में उन चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं और इसके बेसिस पे हम कलर परसेप्शन करते हैं, कलर जो एक विजन कर पाते हैं. एंड डायमेंशंस ऑफ आई में जो हमारा ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कलर की, कलर के डायमेंशंस है ये 3. तो ये एक्सप्लेन करना है इन दिस सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how does auditory sensation take place? So auditory sensation पूरा अगर आप विद डायग्राम बनाओ तो वेल एंड गुड है. वेल यहाँ पे स्पेशलाइज पूछा नहीं गया है तो आप नहीं भी बना सकते हो. पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे हाउ डज ऑडिटरी सेंसेशन टेक प्लेस, आपको ऑडिटरी सेंसेशन के बारे में पूछा गया है. सो डेफिनेटली आपको आई के स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है. जो फंक्शन ऑफ आई है और जो आपका साउंड एज अ स्टिमुलस एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि हाउ वी रिसीव द सिग्नल, हाउ वी इंटरप्रेट इट, हाउ वी रिकॉग्नाइज इट. सो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे ईयर का, वो आपको एक्सप्लेन करना है. समराइज वे में आप स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एक्सप्लेन कर सकते हो. सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज डिफाइन अटेंशन, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज. सो अटेंशन दैट्स मीन एक कैरेक्टरिस्टिक. So in this question, you have to write down the concept of attention, then the properties, the 4 properties: selection, alertness, concentration, and such. These 4 are properties of attention. Next question is state the determinants of selective attention. How does selective attention differ from sustained attention? So यहाँ पे concept of selective attention and the sustained attention first of all explain करना है. Then determinants, that's mean जो factors हैं selective attention के, external factors और internal factors. So in the external factor there are size, intensity, movement of stimuli, large or bright stimulus, auditory narrations, stimuli, मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है आपकी एक्सटर्नल, मतलब रिलेटेड टू स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक इज द एक्सटर्नल
factors, and related to the individual characteristic is the internal factors. So internal factors में cognitive factor है, motivational factors है, और cognitive factors में भी बहुत सारे factors आ जाएंगे, ठीक है. उसके बाद मोटिवेशनल फैक्टर्स में भी 2-3 फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे आपका सिलेक्शन है, आपका मोटिवेशन है, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे. सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज what is the main proposition of Gestalt psychologist and with respect to perception of the visual field. ठीक है. सो यहाँ पे आपको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप है, फॉर्म परसेप्शन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे आपको इन शॉर्ट सारे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट इज how does perception of shape take place? This is the next question. So space में किस तरह से आप perception करते हो, मतलब आपका basically distance और depth perception. So यहाँ पे आपको इसी का concept mention करना है. And space is perceived in 3 dimensions. So third dimension किस तरह से हमारा psychological property है वो explain करना है. Then next question is what are the monocular cues of depth perception and explain the role of binocular cues in the perception of depth. So definitely first of all monocular cues, then the binocular cues, दोनों ही explain करने हैं, जो भी दोनों clue से related सब जो कि points है वो आपको explain करना है. Next question is why do illusion occur? So concept of illusion, what is illusion, then why it occurs and what are the types, like universal illusions and the personal and specific illusions. इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, और क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, क्यों ये अकर करता है, ये भी एक्सप्लेन करना है. देन नेक्स्ट इज हाउ डू सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया. So this is all about the NCERT questions. Now some additional questions. Very short answer type नहीं करते हैं, वो आप कर लोगे. Short answer type. Another questions, ठीक है. ठीक है. Other additional questions. तो question number 1 है इसमें. Explain the concept of absolute Lyman. Next question. Explain the concept of differential Lyman. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैंने सो मेनी टाइम ऑनलाइन क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है. देन डिस्कस द 3 लेयर्स ऑफ द आई. दिस इज अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है इसमें. नेक्स्ट है डिस्कस द 2 चैम्बर्स ऑफ एन आई. ठीक है, जो हमारा 2 चैम्बर्स था, एक्वियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, या एक्वियस चैम्बर और विट्रस चैम्बर, जिसमें कि एक्वियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर फ्लूइड फिल रहता है. सो ये 2 चैम्बर्स है जो कि अनइवन चैम्बर है. हमारा एक्वियस चैम्बर है वो स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू विट्रस चैम्बर. ये आपको एक्सप्लेन करना है. द क्वेश्चन इज डिस्कस द 2 चैम्बर्स ऑफ द आई ऑफ एन आई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट between 2 टाइप ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल्स, दैट इज रॉड्स एंड कॉन्स. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.
इसमें रॉड्स एंड कॉन्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्क्रिमिनेट करना है. कॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे विजन एंड रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन. ठीक है. सो यहाँ पे क्या क्वालिटीज हैं इन दोनों की, व्हाट आर द फिल सब्सटेंस, क्या फिल सब्सटेंस है इसमें, डे एडेप्टेशन और नाइट एडेप्टेशन में किस तरह से इसका रोल है वो भी एक्सप्लेन करना है. एक कंपैरेटिव स्टडी देनी है कि किस तरह से रॉड्स का क्या रोल है और कॉन्स का क्या रोल है, क्या जो कि रिसेप्टर्स किस तरह के हैं इसके. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज विजुअल स्पेक्ट्रम. What is visual spectrum? So visual spectrum is a range of energy that's been 380 to 780 centimeter, nanometer, and that our photoreceptors can detect. And nanometers refers to nanometer, which is 1 billion of a meter, and the energy lower or higher than the visual spectrum is harmful to the eye. And the color observed in visual spectrums are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, abbreviated as VIBGYOR. ठीक है. विगोर करके इसको बोला जाता है. दिस इज द आंसर ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम. विजुअल स्पेक्ट्रम क्या है? एक ऐसी रेंज है, एक ऐसा रेंज है जो हमें बताता है कि हमारी आई जिसके लिए सस्पेक्टेबल है, जो हमारी आई जिससे रिसीव कर सकती है. इससे अपर, इससे लोअर लिमिट के जो स्टिमुलस होंगे या जो स्पेक्ट्रम होगा उससे हमारी आईज नहीं डिटेक्ट कर पाएगी, नहीं रिसीव कर पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. दीज आर द कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड एज अ स्टिमुलस. Define amplitude, wavelength and frequency. And frequency. So amplitude, wavelength और frequency क्या है ये explain करना है. Amplitude is a general measure of stimulus magnitude, and it is the amount of change in pressure, that is the extent of displacement of the molecules from the position of rest. And the wavelength is the distance between the two crests, and frequency is the measured in term of cycle per second. So these are the three points जिसे explain करना है. Discuss the process of functioning of sound waves. Next question है discuss the functioning of sound waves. Sound waves की क्या functioning है वो explain करना है. Sound waves vary in amplitude as well as in wavelength, and the amplitude of sound wave is represented as the distance of the crest or trough from its mean positions. Sound waves are formed due to alternate compression and decompression of air molecules, and wavelength it is distance between two crests. So sound waves are described in terms of their frequency, which is measured in terms of cycle per second, and its unit is called hertz. And frequency and wavelength have an inverse relationship. When the wavelength increase, the frequency decrease, and when the wavelength decrease, the frequency increase. So these whole concept is three important terms: the amplitude, frequency, and the wavelength. Explaining these three, and the relationship between these three is the sound wave or the sound waves. Next is, what do we understand by the term focus and
fringe of the attention. What do you understand the term focus and fringe of the attention? So attention has a focus as well as fringe, because when the field of awareness is centered on a particular object or event, it is called focus or the focal point of attention. मतलब जब हमारा concentration रहता है किसी particular object पे, and when the object or event are away from the center of awareness and one is only visually aware of them, so they are said to be at the fringe of attention. ठीक है, मतलब जो हमारे बेसिकली देयर इज अ 2 पॉइंट, द सेंटर पॉइंट एंड द पेरिफेरल पॉइंट. जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन हमारे अटेंशन के पॉइंट पे है जो ऑब्जेक्ट, दिस इज द फोकस ऑफ अटेंशन, फोकल ऑफ अटेंशन विच इज ऑल्सो नोन एज. एंड जो उसके अवे है, मतलब हमारे प्रोसेस में है, बिल्कुल आउट ऑफ द प्रोसेस नहीं हो गया है, बट स्टिल हमारा अटेंशन वहां नहीं है, हमारा अराउजल नहीं है. सो दिस इज द फ्रिंज. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट distinguish figure from the ground. Explain the characteristics that distinguish figure from the ground. So definitely आपके बुक्स में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि क्या क्या पॉइंट्स है. देयर आर 4 पॉइंट्स जो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हमारा जो फिगर है वो ग्राउंड से सेपरेट है, सेग्रीगेट है. सो वो कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करनी है. फॉर एग्जाम्पल, फिगर हैज अ डेफिनेट फॉर्म while the background is relatively formal. इस तरह से 5 पॉइंट मेंशन है. Next question is, what do you understand by after image? So after image are related to visual sensation. The effect of a visual stimulus persists for some time even after the removal of that stimulus from the visual field. The effect is called after image. ठीक है, डेफिनेटली जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्टिमुलस हमारे विजुअल फील्ड से रिमूव कर लिया जाता है, आफ्टर दैट कुछ टाइम पीरियड तक उसकी इमेज परसिस्ट रहती है हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स पे. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आफ्टर इमेज. देयर आर 2 टाइप ऑफ आफ्टर इमेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वो दोनों भी एक्सप्लेन कर देना है इस कॉन्टेक्स्ट में आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन. सो सेंसेशन की का कॉन्सेप्ट, सेंसेशन की डेफिनेशन, एट द सेम टाइम परसेप्शन क्या है, परसेप्शन की डेफिनेशन. ठीक है, एट द सेम टाइम दोनों की क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से परसेप्शन और सेंसेशन रिलेटेड है एक दूसरे से. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसेशन आता है when our receptors are receive the signals which are presented in our environment. This phenomena is known as sensation. And when we are adding a meaning, when we are interpreting the sensation, the information which are given by our sense organs, and we understand, we recognize the information, this is the perception. Next question is, explain the working of the eye. So definitely इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायग्राम जरूर मेंशन करना होगा. वर्किंग ऑफ द आई पूछ रहा है, तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बताओगे तो डेफिनेटली आप नहीं बता पाओगे. सो आपको एक ब्यूटीफुल सा आई का डायग्राम, लेबल्ड, वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना होगा. उसके बेसिस पे आप इसका फंक्शंस भी बता सकते हो. देन नेक्स्ट इज, व्हाट इज परसेप्शन? एक्सप्लेन द सब प्रोसेसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग. मीनिंग मेकिंग प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज परसेप्शन. सो सब प्रोसेसेस मैंने आपको ब्लैकबोर्ड पे बना के बताया था. द स्टिमुलस, देन द सेंसरी रिसेप्टर्स, देन अटेंशन, देन सीएनएस, फिर परसेप्शन. तो ये होल मैकेनिज्म है, होल प्रोसेस है, सब प्रोसेसेस हैं परसेप्शन की. सो ये डायग्राम आपको वहां देना है, ये जो आपके बुक में मेंशन है ऑलरेडी, और उसके बाद परसेप्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज, डिस्कस द रोल ऑफ परसीवर इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन. जो परसीवर के रोल्स हैं, दैट्स मीन आपका परसेप्चुअल सेट है, कॉग्निटिव स्टाइल है,
कल्चरल बैकग्राउंड, ये सारे पॉइंट्स जो सब पॉइंट्स है परसीवर के कैरेक्टरिस्टिक में, वो एक्सप्लेन करना है. डिस्कस हाउ वी परसीव कलर. ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. सो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि परसेप्शन ऑफ कलर, कलर इज अ crucial part of our visual experience. There are two main reason why color vision is of value to us. ठीक है, पहला तो डिटेक्शन, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन. हाउ वी डिटेक्ट द कलर्स, किस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कलर को, एंड हाउ वी डिस्क्रिमिनेट, दिस इज नॉट रेड, दिस इज ग्रीन. सो दिस डिस्क्रिमिनेशन. सो कलर विजन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स बैकग्राउंड. जब हम फिगर ग्राउंड की बात करते हैं, इसके बेसिस पे भी हम कलर फाइंड आउट कर पाते हैं. एंड इन द डिस्क्रिमिनेशन, सो कलर विजन मेक इट इजी फॉर अस टू मेक फाइंड डिस्क्रिमिनेशंस अमंग ऑब्जेक्ट, एंड कलर इज डिटरमाइंड बाय द वेवलेंथ और द लाइट वेव विच आर द कॉज ऑफ ऑल कलर एक्सेप्ट इट्स ओन. ठीक है, तो मतलब जो भी कलर की वेवलेंथ होती है उसी के बेसिस पे हम कलर को रिसीव करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज ह्यू. ठीक है, ह्यू के बेसिस पे हम कलर परसीव करते हैं. सैचुरेशन जो है ये हमारे शेड्स को बताता है, एंड ब्राइटनेस अपने आप में हमारी जो लाइट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसे एक्सप्लेन करती है. ठीक है, ब्राइटनेस होती है लाइट्स में, तो जो मैक्सिमम ब्राइटनेस होती है उसे हम सबसे जल्दी जो कि रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, सबसे जल्दी एलिमिनेट कर पाते हैं. सो दिस इज द ब्राइटनेस. तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the psychological dimension of a sound wave. Sound wave के psychological dimensions क्या क्या है? There are 3 psychological dimensions: the loudness, pitch and timbre. ये 3 psychological dimensions है, ये तीनों आपको explain करना है. Next is what is sustained attention or vigilance? Explain the factors which affect sustained attention. ठीक है, तो सस्टेन अटेंशन क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेन अटेंशन, दैट्स मीन द कंसंट्रेशन ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज द सस्टेन अटेंशन, जहां पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे देर तक, लंबे पीरियड तक. एंड फैक्टर्स की बात करें तो सेवरल फैक्टर्स आर फैसिलिटेट और इनहिबिट एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस ऑन टास्क ऑफ सस्टेन अटेंशन, लाइक सेंसरी मोडालिटी, क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस, टेम्पोरल अनसर्टेनिटी एंड द स्पेशल अनसर्टेनिटी. ये 4 पॉइंट है जिसे आपको एक्सप्लेन करना है इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग अप्रोच इन परसेप्शन. सो टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड द बॉटम अप प्रोसेसिंग. सो मेनी टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो दोनों प्रोसेस आपको यहाँ मेंशन करने हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्टेसेंसीज. ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइज कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी एंड ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी, ये तीनों जो कंसिस्टेंसी था आपका, वो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, वो एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट है डिस्कस स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ईयर. तो इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर एंड द एक्सटर्नल ईयर, 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारे ईयर का स्ट्रक्चर. विद डायग्राम आपको स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एक्सप्लेन करना है. राइट द थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन. So all the 3 theory, filter alternation theory and the multimode theory, तीनों ही theories यहाँ पे mention करना है. और क्योंकि यहाँ पे directly theories पूछी गई है, तो there is no need to explain the concept of sustained attention here. Sorry, selective attention. Then the what factor influence perception? So definitely the motivation, expectation, cognitive style and the cultural background. These 4 factors which are related to the perceiver's quality. ठीक है, परसीवर की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड ये चारों फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे परसेप्शन को. सो ये चारों फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस. नाउ फ्यू एडिशनल क्वेश्चंस आर आल्सो हियर. आई जस्ट रीड द क्वेश्चंस. लाइक डिफाइन अटेंशन. व्हाट डू यू मीन बाय बॉटम अप प्रोसेसिंग? नेक्स्ट इज डिफाइन कंसंट्रेशन. Define illusion. What is difference lemon? Define cessation. What is hue? Mention the layer of eye which is richly supplied with blood vessels. ठीक है, ये इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा. Mention the layer of eye which is richly supplied with blood vessels. This is the middle layer. ठीक है. And what do you mean by cognitive style? So हमारे field dependent, field independent cognitive style मैंने बताया है, वो इसमें लिखना है. Then what is the span of attention? Explain. So span of attention, that's the concept of span of attention जहाँ म्यूलर ने 7 + - 2 का concept दिया था.
Discuss in brief attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. And what is selective attention? Describe factors that affect selective attention. What is color vision? Discuss the dimension of colors. What are the functional limitations of sense organs? Describe the determinants of selective attention. Explain the role of binocular cues in the perception of depth. Next है, discuss filter theory, filter attenuation theory or multimode theory also. Discuss the monocular cues of perception. Discuss main processing approach in perception. Discuss socio-cultural influences on perception. So these are the additional questions जिसे आपको solve करना है अपनी कॉपी में और मुझे शो करना है. So definitely whenever आपका चैप्टर जब भी कंप्लीट होता है, चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ, देन चैप्टर 5, हम चैप्टर 5 आज कंप्लीट कर रहे हैं. सो डेफिनेटली जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको वहीं पे सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लेने हैं. ठीक है, आपके नोट्स की कॉपी में जो भी अपने नोट्स की कॉपी बनाई है, कुछ बच्चों ने शेयर भी किया है मुझे मेरे मेल आईडी पे, बट सारों ने नहीं किया है. तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि सब अपने नोट्स प्रिपेयर करो और मुझे अपने मेल आईडी पे शेयर करो, सो जिससे मैं वहां पे चेक कर पाऊँ उससे कि आपकी नोट्स में क्या मतलब फॉल्ट है, क्या उसका किस तरह से आप उसे और इम्प्रूव कर सकते हो. एट द सेम टाइम जैसे कि आपको कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, वहीं पे आप डेफिनेटली वहीं पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जितने भी एंगल से बन सकते हैं, वहीं पे सॉल्व कर लो. उसके बाद तब आप मूव ऑन करो चैप्टर सेकंड पे. ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है. सो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस में पॉसिबल थे वो मैंने बताए. कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आप बनाओ कुछ क्वेश्चंस, कुछ मैं बनाती हूँ, सो उसे भी डिस्कस करेंगे. एंड जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप, उसे हम टेस्ट में कंसीडर करते हैं. एक हर हफ्ते हम जो एक टेस्ट करते हैं उसमें डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें कर लेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन क्लास में. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5 जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसेशन पढ़ा, द 7 सेंस ऑर्गन्स, then sensory modalities, functional limitation of sensory modalities, then visual sensation, auditory sensation in detail, उससे related कुछ और phenomena, then concept of attention, the selective attention, theories of selective attention, factors of selective attention, sustained attention, divided attention, span of attention. ठीक है, and the ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. उसके बाद हमने perception start किया, the concept of perception, the processing approach, top down processing approach, bottom up processing approach. After that the concept of perceptual organization, जिसमें हमने concept of Gestalt theory, the form perception, the figure and ground perception, law of pregnance हमने पढ़ा, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है law of pregnance. Then the what are the characteristic of figure and ground perception. ठीक है, उसके बाद figure and ground perception के बाद the principles of perceptual organization, जो बहुत सारे principles थे, similarity, proximity, continuity, ठीक है, surroundedness, बहुत सारे ये principles हमने पढ़े जो explain करते हैं किस तरह से हम जो कि objects को जो कि organize करते हैं. After that the concept of space, depth and distance perception, उसमें हमने monocular cues और binocular cues पढ़े. उसके बाद लास्टली कॉन्सेप्ट था हमारा इल्यूजन का. तो व्हाट इज द इल्यूजन, द टाइप्स ऑफ इल्यूजन, यूनिवर्सल इल्यूजन एंड द इंडिविजुअल इल्यूजंस, जिसमें कि हमने म्यूलर-हाल इल्यूजन पढ़ा एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन पढ़ा. ठीक है, और हमने एक और लास्ट में मोशन से रिलेटेड एक फिनोमिना पढ़ा था जिसे 5 फिनोमिना कहते हैं. ठीक है, सो वो फिनोमिना भी हमने पढ़ा, वो मोशन से रिलेटेड इल्यूजन था. उसके बाद लास्ट सेक्शन में हमने कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पढ़े कि हाउ परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर. कल्चर किस तरह से रोल प्ले करता है हमारे परसेप्शन में. तो डेफिनेटली जब हम इंडिविजुअल परसीवर की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारी कल्चर की भी बात आ जाएगी कि किस तरह से कल्चर रोल प्ले कर रहा है इंडिविजुअल परसेप्शन में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 5 इन ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सारे डिस्कस कर दिए मैंने. ठीक है, डोंट मतलब लाइक और ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है. एनसीईआरटी में तो 4 to 5 क्वेश्चंस है ओनली, उसी में से बोर्ड्स में नहीं आते हैं और कभी भी किसी एग्जाम में नहीं आते. डेफिनेटली आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं. सो ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने साइड बुक की हेल्प से आपको बताए. और भी अगर आपके ब्रेन में कोई क्वेश्चंस आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप उसे भी मेंशन करो डेफिनेटली, और शेयर करो अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स से, मतलब अदर स्टूडेंट्स से, अपने क्लासमेट से वो क्वेश्चन शेयर करो कि इस एंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है.
ठीक है। सो इस तरह से आप डिस्कस करो, सो आपकी बहुत अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप सब लर्निंग को लेकर बहुत ज्यादा वरीड रहते हो, बहुत ज्यादा एंशियस रहते हो कि किस तरह से अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर पाए। सो अवर नेक्स्ट चैप्टर इज लर्निंग, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स, ऐसे सीक्रेट्स पता चलेंगे कि जिससे आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर पाओगे, अपनी स्टडी को ओवरऑल इंप्रूव कर पाओगे। सो नेक्स्ट चैप्टर इज लर्निंग। थैंक यू सो मच क्लास।